Hello, good afternoon to all of you. Today, I'm going to teach you topic torque acting on a dipole placed in electric field. Torque acting on a dipole placed in electric field. See here, the heading is written. So, what we have to do, we have to calculate torque on what? On a dipole, and when we are placing that dipole in an electric field. Okay, so first what we will do, we will give consideration. तो हम सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे? We will consider two plates. One will be K and other will be M. Okay, तो other K और L कुछ भी आप लिख सकते हैं, it hardly matters. तो we will place, consider two plates which can provide us electric field. Means these two plates will have polarity. One will have positive polarity and other will have negative polarity. So यहाँ पे आप प्लस 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 मार्क कर देंगे और यहाँ पे माइनस 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 माइनस. So what we have to consider in this derivation, first we will consider an electric dipole, and you know electric dipole we are considering, what are we giving the name? We are considering an electric dipole and we are using the word AB. So we will consider an electric dipole. Okay, one part end is A, other end is B. B end is considered as minus, having minus Q charge, and A charge is A point, side is having plus Q charge. So what we will do, first of all we have to calculate torque. So you should be knowing that what is torque. Torque is that type of force which brings a turning effect. Okay, and formula for torque is R cross F, where F is the force applied and R is the perpendicular distance. Okay, so ये हम we'll use this formula later on, but first we will just begin with our derivation. So what we will do in this derivation, first of all we'll consider an electric dipole AB minus, such that plus Q charge is placed at point A and minus Q charge is placed at minus Q charge is placed at point B. This electric dipole is placed in an electric field. And what is the name of the electric field? That is capital E. Okay, so we will just, what we'll do, we will join this perpendicular like this at a point. We'll make this perpendicular line and join this with B, and this point will be given the name C. And we know dipole length is given by twice of A. So AB की length कितनी होगी? Twice of A. Okay, you know this thing. I hope ये आपको पता है. ओके, सो इतना सारा कंसिडरेशन करने के बाद आपको जो सबसे पहला लाइन लिखना है, हम सबसे पहले लिखेंगे फोर्स. सबसे पहले हम दोनों केसेस के लिए फोर्स निकालेंगे. एक बार हम प्लस क्यू के लिए निकालेंगे, दूसरी बार माइनस क्यू के लिए निकालेंगे. तो फोर्स हम पहले प्लस क्यू के लिए निकालते हैं. फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन बाय, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए. एफ जो हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं. F इज इक्वल टू Q, जो आपका चार्ज होगा, यहाँ पे हमारा क्या है प्लस Q, पहले कंसीडर करते हैं प्लस Q. और वैसे ही मेन रूट में लिखना होता है, अगर नेगेटिव भी होगा तब भी Q हमारा क्या आएगा, प्लस ही आएगा. इनटू क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो F किसके बराबर होता है हमारा, Q इंटू E. और हमारी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पे जो फोर्स लग रहा है इस पे, तो ये डायरेक्शन भी किसके डायरेक्शन के अलोंग है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन अलोंग the direction of electric field, ये ठीक है. वैसे हम निकालेंगे सिमिलरली फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज की वजह से. तो हमने मैग्नीट्यूड में लिखना है, तो F यहाँ माइनस क्यू आने की जगह यहाँ पे क्यू ई तो लिखना है, पर यहाँ माइनस क्यू है इस केस के लिए, और माइनस क्यू चार्ज को हम मैग्नीट्यूड में लिखते हैं. तो यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई. यहाँ तक समझ आ गया आपको, ये सेम आया. तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी, ये मेरी क्या बनी, सेकंड इक्वेशन. यहां तक इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं. स्टेप 3 क्या है हमारा, यहां पे नोट कीजिए अगर आपको क्लियर दिख रहा है. ठीक है, आई होप कि आप सबको दिख गया है. अब इसके बाद क्या करना है, टॉर्क का फॉर्मूला लिखना है. तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको मैंने बताया अभी, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो टॉर्क. आगे ये डेरिवेशन कंटिन्यू हो रही है, मैं नीचे लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं. वी नो टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स into perpendicular
डिस्टेंस। आप परपेंडिकुलर ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए बच्चे, फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है, एक को मैं कंसीडर करूं तो क्या है हमारा, Q इंटू ई, यही हमारा फोर्स लग रहा है कि इसमें किसी को डाउट है, ठीक है। तो हमारा फोर्स जो लग रहा है वो इसके बराबर ही है हमारा। तो फिलहाल मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, तो मैं इसको ये लिखूंगा, टॉर्क हमारा टाउ आ जाएगा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में, और फोर्स हमारा क्या रहेगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इनके बीच में ए बी के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाला, इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चे, ए सी। क्या नाम देते हैं, ए सी। तो टाउ किसके बराबर आया बच्चे, एफ डॉट ए सी। अब एफ तो पता है आपको हमारा क्यू के बराबर है, पर ए सी मुझे नहीं पता। तो मुझे ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो मुझे बच्चे इस वाली साइड की ए सी की वैल्यू निकालनी है। मतलब मुझे, आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मुझे साइन कॉस टैन में कौन सा यूज करना है जिसमें मेरा परपेंडिकुलर की वैल्यू आए, तो मैं ये वाली यूज करूंगा, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज पता है किसके बराबर है, ट्वाइस ए। तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा, दोनों में से एक पैरामीटर पता हो तो मैं लिखूंगा साइन थीटा। साइन थीटा ही आएगा ना बच्चे, इसमें कोई डाउट है आपको तो बता दो। तो मैंने यहाँ डायग्राम में थीटा लेबल नहीं किया, यहाँ पर इस डायग्राम में थीटा बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन, ये होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ये AC अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है बच्चे, AB। AB की वैल्यू आपको पता है ट्वाइस ए है, तो मेरा AC अपॉन ट्वाइस ए इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या बनेगी बच्चे, AC इक्वल टू साइन थीटा के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू ट्वाइस ऑफ ए। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 3, नहीं इसको बनाइएगा 3, इक्वेशन नंबर 3, इसको बना दीजिएगा इक्वेशन नंबर 4। तो हम ये जो 4 की वैल्यू आई है AC की, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे AC में, यहाँ पर थर्ड में। तो पुट 4 इन 3, तो क्या बनेगा बच्चे, एक सेकंड, मेरा डालने वाला कहाँ गया, ये रहा। तो डालिए बच्चे वैल्यू, तो क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू डालिए, तो टाउ ऐसे ही रहेगा, एफ ऐसे ही रहेगा, और AC की वैल्यू यहाँ से उठाइए, तो क्या है, ट्वाइस ए इंटू साइन थीटा। यहां तक समझ आ गया आपको। आपको पता है एफ की वैल्यू कितनी होती है, अगर दोनों केस में मैं लूं, क्यू इंटू ई के बराबर था, और इंटू ट्वाइस ए साइन थीटा ऐसे का ऐसे रहेगा, ये तो आपको पता है ना बच्चे। तो इसको मैं नीचे वाली चीज को मिटा रहा हूँ। अब देखिए आपको पता है डाइपोल मोमेंट हमारा किसके बराबर होता है, ट्वाइस ए इंटू क्यू। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्यू इंटू ट्वाइस ए इंटू ई इंटू साइन थीटा। यही है ना बच्चे, टाउ के बराबर तो यही आया अभी तक कि नहीं, ठीक है। तो अब क्यू इंटू ट्वाइस से हमें पता है किसके बराबर होता है, पी के बराबर, तो लिख दूंगा मैं यहाँ से पी, ठीक है, ई साइन थीटा, यही आता है। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं मैं, तो साइन है तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, अगर यहाँ क्रॉस होता तो डॉट प्रोडक्ट आता। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा और थीटा खत्म हो जाएगा। जब साइन होता है तो दोनों के बीच में क्या आएगा, क्रॉस। अगर यहाँ कॉस होता तो यहाँ आता पी डॉट ई, पर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे बीच में क्रॉस आएगा, ठीक है, और हमारा थीटा खत्म हो जाता है। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारी किसकी, टॉर्क के फॉर्मूला की, पी क्रॉस ई। ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी बच्चे, वेक्टर फॉर्म में। और नॉर्मल जो था वो हमारा क्या आया, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। यहाँ तक इसको नोट कीजिए, टी इक्वल टू पीई साइन थीटा तक। और आगे इसके 3 केसेस है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, फुल में नहीं बताऊंगा, पर इस चीज को आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके 3 शॉर्ट केसेस मैंने सॉल्व करने हैं। देखिए इसके लिए आपको सब 3 केसेस लेने हैं जिसमें थीटा की वैल्यू, फोटो मिल जाएगी आपको इसकी सोल्यूशन की, मतलब डेरिवेशन की। अब फिर आप समझ लीजिए, सिर्फ जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, 0 मतलब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अगर मेरा डाइपोल प्लेस हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इसी की डायरेक्शन मेरा डाइपोल भी प्लेस है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, डाइपोल भी इस तरफ है, तो थीटा क्या होगा मेरा 0 डिग्री। उस केस में हमारा टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, तो उस समय टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, टी इक्वल टू पीई साइन थीटा आता है आपका, थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो पीई साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो पीई इंटू 0 इक्वल टू 0, तो टॉर्क क्या लगेगा 0। जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में प्लेस हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसी में डाइपोल को मैं ऐसे डालूं हॉरिजॉन्टली सेम टू सेम। दूसरा केस करेंगे हम जिसमें थीटा की वैल्यू 180 है, इसमें थीटा की वैल्यू क्या है 180। जैसे थीटा की वैल्यू 180 कैसे हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरा इस डायरेक्शन में है इधर से,
और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा उल्टा आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी। इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों में आपस में उल्टा एंगल होगा, तो सप्लीमेंट्री 180 बन जाता है। तब भी हमारा टाउ क्या होगा, पीई साइन थीटा, और साइन 180 क्या होता है, 0। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो पीई साइन 0, और आंसर क्या आएगा टाउ का बच्चा आपका, फिर से आंसर क्या आएगा, 0। इस केस में भी मिनिमम। और तीसरा केस होता है बच्चे जब आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा है और डाइपोल आपका बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेस्ड है ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, ये आपका ए आ गया, आपका बी आ गया। उस केस में क्या होगा, तो आपका एंगल क्या बनाएगा, 90 बनाएगा, तो 90 के लिए हमने सॉल्व करना है। तो क्या होगा, थीटा जब आपका 90 के बराबर होगा, तो टी इक्वल टू पीई साइन थीटा, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 आपका क्या होता है बच्चा, 1, तो टाउ इक्वल टू पीई 1 से मल्टीप्लाई, और टाउ की वैल्यू क्या है, पी डॉट ई, और वो क्या होता है, मैक्सिमम केस। तो जब 90 पे हम डाइपोल को रखते हैं तब टॉर्क सबसे ज्यादा मैक्सिमम लगता है, ठीक है। तो ये आपकी टॉपिक खत्म हो गया, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद केसेस, ठीक है। तो इसका अगला टॉपिक आपका जो है वो मैं आपको बढ़ाता हूँ अगले लेक्चर में, ठीक है।